Welcome students, this is the revision video of chapter 1 of Statistics for Economics. In this, first of all, we study about what is economics. As we all know, it is the rational management of scarce resources in such a manner so that consumer gets maximum satisfaction, producer gets maximum profit and society gets maximum social welfare. So these are the important components, consumer and producers, and you all know that consumers main aim is to maximize its satisfaction and producers main aim is to maximize their profit. सो हम जितने भी स्कार्स रिसोर्सेज अवेलेबल है एक इकोनॉमी में उनको इस तरह से यूज में लें कि मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन कंज्यूमर को मिल जाए, मैक्सिमम प्रॉफिट प्रोड्यूसर को मिल जाए और सोसाइटी का मैक्सिमम सोशल वेलफेयर हो सके. सो इट इज ऑल अबाउट द मेकिंग चॉइस इन द प्रेजेंस ऑफ स्कार्सिटी. स्कार्सिटी मीन्स कमी होना, डिमांड तो है ज़्यादा और सप्लाई है कम. दिस इज द स्कार्सिटी एंड इट इज द रूट ऑफ ऑल इकोनॉमिक प्रॉब्लम. सो in every economy, whether it is developed economy or developing economy, the resources are scarce and limited and having alternative uses. एक रिसोर्स का केवल एक ही यूज नहीं है, मोस्टली रिसोर्सेज ऐसे हैं जिनके ऑल्टरनेटिव यूजेस अवेलेबल है. लाइक एक लैंड है. If we take an example of land, land is the resource and that is scarce in nature. उस पर हम वीट प्रोडक्शन भी कर सकते हैं, राइस प्रोडक्शन भी कर सकते हैं और वेजिटेबल प्रोडक्शन भी कर सकते हैं. सो देयर आर सो मेनी अल्टरनेटिव यूजेस ऑफ लैंड due to which there arises the problem of choice, and this is the basic problem, basic economic problem. Next is the some basic concepts of economy. First is the economic activities. You all know what are economic activities. All those activities which are related to earn money. वो सारी एक्टिविटीज जो हम मनी अर्न करने के ऑब्जेक्टिव को लेकर के कर रहे हैं वो सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज कहलाती हैं. एंड in this we generate new income, and in economy flow of goods and services also increases through the economic activities. Production, consumption, investment and distribution are economic activities because these activities are related to earn money. Non-economic activities are those in which main aim is not earning money, main aim is self satisfaction. So in this activities they neither generate income nor increase the flow of goods and services in the economy. वो सारी एक्टिविटीज जो इनकम अर्न करने के लिए नहीं की जा रही है. Next is the consumer. Consumer is the person who consumes goods and services for satisfaction of his wants. We all are consumers and what we want to satisfy our wants. Next is consumption. Consumption is the process of using up utility value of goods and services. Means goods and services की जो कैपेसिटी है हमारी wants को satisfy करने की उसे हम यूटिलिटी वैल्यू कहते हैं. और हम जब गुड्स एंड सर्विसेज यूज में ले रहे हैं, क्यों यूज में ले रहे हैं? क्योंकि हम अपनी वांट्स को सेटिस्फाई करना चाहते हैं. सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कंजम्पशन. नेक्स्ट इज द प्रोड्यूसर. यू ऑल नो प्रोड्यूसर इज द पर्सन हु प्रोड्यूसेस and sells goods and services and his main aim is to earn money to generate income. Next is the production. It is the process of converting raw material into useful thing. Production में हम raw material को useful things में convert करते हैं. Next is distribution. Distribution means distribute करना. Total output और total income जो भी produce हो रहा है economy में उसको individuals में और factors of production में distribute करना. There are 4 factors of production: land, labor, capital, entrepreneur. Land gets rent, labor gets wages, capital gets interest and entrepreneur gets profit. By this they get their share because they all are participating in the
प्रोडक्शन प्रोसेस ऑफ एन इकोनॉमी। तो डिस्ट्रीब्यूशन में हम इन चारों फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं टोटल इनकम को या टोटल आउटपुट को। नेक्स्ट इज सेविंग। यू ऑल नो सेविंग इज द बचत, जिसको हम हिंदी में कहते हैं, और बचत मीन्स जो हमारी इनकम का वो पार्ट जिसको हमने कंजम्पशन पे खर्च नहीं किया है, दैट इज सेविंग। इट इज एन एक्ट ऑफ एब्सटिनेंस फ्रॉम कंजम्पशन। नेक्स्ट इज इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट मीन्स all that expenditure that is done for the purpose of future benefit। प्रोड्यूसर अगर असेट्स पर खर्चा करता है, अपने नई मशीन्स खरीदता है और नई मशीन्स पर एक्सपेंडिचर करता है, तो दैट इज अ काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट, क्योंकि उसमें उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, फ्यूचर बेनिफिट। तो फ्यूचर बेनिफिट को लेकर के जो भी एक्सपेंडिचर किया जा रहा है, दैट ऑल expenditure we count in the investment. Next is what is statistics. It means quantitative information or quantification of facts and findings. हम statistics में क्वांटिटेटिव डेटा के बारे में स्टडी करते हैं। क्वांटिटेटिव डेटा वो सारे डेटा होते हैं जिनको हम मेजर कर सकते हैं न्यूमेरिकल टर्म्स में। जो नंबर फॉर्म्स में जितने भी डेटा हैं वो सारे डेटा क्वांटिटेटिव डेटा कहलाते हैं। लाइक वेट, हाइट, प्राइस, इनकम, एक्सपेंडिचर, ये सारे वो वेरिएबल्स हैं जिनको हम न्यूमेरिकल या नंबर फॉर्म में मेजर कर सकते हैं। सम डेटा आर क्वालिटेटिव। क्वालिटेटिव डेटा वो डेटा होते हैं जिनको हम नंबर टर्म्स में या न्यूमेरिकल टर्म्स में मेजर नहीं कर सकते हैं। लाइक ब्यूटी, इंटेलिजेंस, दीज आर सम डेटा विच वी कांट measure in numbers. So in statistics we study about only quantitative data, not the qualitative data. हम केवल क्वांटिटेटिव डेटा की स्टडी करते हैं इकोनॉमिक्स में, नॉट द qualitative data. Now statistics we can define in two aspects. First is the plural sense. In plural sense, when we study about economics, statistics, then it is information in terms of numbers or numerical data. Numerical data में जो भी information है, that is statistics, means it is systematic collection of numerical facts. So, लेकिन every quantitative information is not statistics. अगर हम ऐसा कहते हैं, like if I say Mohan's height is 5 feet 7 inch, this is not statistics. Statistics में हम वो सारे डेटा लेते हैं जिनका हम एवरेज फाइंड आउट कर सकते हैं, एग्रीगेट निकाल सकते हैं, या फिर हम उनको कंपेयर कर सकते हैं। तो वो सारे डेटा, वो सारी क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन जिसमें हम एवरेजेस फाइंड आउट कर सकते हैं, या हम उनका एग्रीगेट्स फाइंड आउट कर सकते हैं, या कंपेयर कर सकते हैं, दोज ऑल आर कॉल्ड स्टैटिस्टिक्स. Not all the data are statistics. So we can say this statement, all statistics are data but all data are not statistics. सारे statistics तो data हम कह सकते हैं, but सारे डेटा को स्टैटिस्टिक्स नहीं कह सकते हैं। इंडिविजुअल डेटा जिनको हम कंपेयर नहीं कर सकते, एग्रीगेट्स नहीं निकाल सकते हैं, वो स्टैटिस्टिक्स नहीं होते हैं। Now next is the features of statistics in plural sense. First is aggregates of the facts. अभी मैंने आपको बताया single number does not constitute statistics. So all those facts are statistics by which we can find out aggregates, we can compare them, and we can find out conclusions from them. Next is numerically expressed. All the statistical data are numerical expressed. मीन्स क्वांटिटेटिव डेटा को हम स्टैटिस्टिक्स में इंक्लूड करेंगे, नॉट द क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स लाइक स्मॉल, बिग, रिच, पुअर, दीज आर नॉट स्टैटिस्टिक्स. ओनली क्वांटिटेटिव डेटा दैट कैन बी मेजर इन टर्म्स ऑफ नंबर्स आर कॉल्ड स्टैटिस्टिक्स. नेक्स्ट इज मल्टीप्लिसिटी ऑफ कॉजेज. स्टैटिस्टिक्स is affected by many factors, not by a single factor. केवल एक ही फैक्टर स्टैटिस्टिक्स को अफेक्ट नहीं करता है. लाइक वी कैन से, अगर प्राइसेस बढ़ रही है तो प्राइसेस आर इंक्रीजिंग ड्यू टू रिडक्शन इन सप्लाई, ड्यू टू इंक्रीज इन डिमांड, एंड ड्यू टू हाई टैक्सेस और हाई वेजेस, नॉट
a single factor affect the statistics. Statistics is influenced by many factors. Reasonable accuracy is there in the statistics while we collecting statistical data. It depends on purpose of investigation. किस तरह से हमने इन्वेस्टिगेशन किया है, किस तरह से हमने डेटा कलेक्शन किया है, इस पर डिपेंड करता है स्टैटिस्टिकल डेटा की रीजनेबल एक्यूरेसी. एंड प्री डिटरमाइंड पर्पस स्टैटिस्टिक्स में जरूर होता है. जब भी हम डेटा कलेक्ट करते हैं तो कुछ ना कुछ ऑब्जेक्टिव लेकर के, कुछ ना कुछ पर्पस लेकर के चलते हैं. एंड अकॉर्डिंग टू दैट वी कलेक्ट द न्यूमेरिकल डेटा एंड वी डू द फर्दर स्टडी इन स्टैटिस्टिक्स. नेक्स्ट इज एन्यूमरेटेड or estimated. Data may be enumerated or may be estimated. Enumerated means when we collect the data by going asking the person to person, that is called enumeration. हम लोगों के पास आके डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, उनसे क्वेश्चन पूछ करके, that is enumeration. और estimated means एक estimation लगा करके हमने डेटा लिए हैं. So it depends on the field of inquiry. कैसी लार्ज फील्ड होती है तो हम एस्टिमेटेड डेटा ले लेते हैं, स्मॉल फील्ड होती है तो हम एन्यूमरेटेड डेटा लेते हैं. नेक्स्ट इज स्टैटिस्टिक्स इज द डेटा विच इज कलेक्टेड इन सिस्टमैटिक मैनर. जो भी डेटा सिस्टमैटिक मैनर में एक प्लानिंग के अकॉर्डिंग एक प्रॉपर ऑब्जेक्टिव को लेकर के कलेक्ट किए जा रहे हैं, ऑल दोज आर स्टैटिस्टिक्स. कोई भी ऐसा डेटा जो हैपहैज़र्ड वे में हमने कलेक्ट किया, दैट इज नॉट स्टैटिस्टिक्स. लास्ट इज म्यूचुअली रिलेटेड एंड कंपैरेबल. ऑल डेटा इन स्टैटिस्टिक्स आर म्यूचुअली रिलेटेड, दे आर कंपैरेबल. अभी इन द फर्स्ट फीचर वी हैव रेड, कोई भी इंडिविजुअल इंफॉर्मेशन numerical information is not statistics. Statistics include all those information in which data are mutually related or comparable. वो सारे डेटा हम स्टैटिस्टिक्स में काउंट करेंगे जो म्यूचुअली रिलेटेड है या कंपैरेबल है.